بے ضابطگیوں اور نیب کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے اور ہائی کورٹ میں خواجہ برادران کی ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے خواجہ برادران کی درخواست ضمانت میں آج تک توسیع دے رکھی ہے۔ جسٹس محمد طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق عدالت کے روبرو 12 بجے پیش ہوں گے۔ عدالت نے نیب سے وارنٹ گرفتاری میں وجوہات طلب کر رکھی ہیں۔ خواجہ برادران کی پیشی کے باعث ہائی کورٹ میں پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے ضابطگیوں اور نیب کی ممکنہ گرفتاریوں کا معاملہ ہائی کورٹ میں خواجہ برادران کی ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت آج ہوگی۔ شہر کے تمام بند فلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کے کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ عدالت نے لارڈ میئر مبشر جاوید کو آج طلب کر رکھا ہے۔ ایم ڈی واسا، سید زاہد عزیز سمیت دیگر افسران بھی پیش ہوں گے۔ جسٹس علی اکبر قریشی کیس کی سماعت کریں گے۔ شہر میں واسا کے زیر انتظام ٹیوب ویل ٹھیک چل رہے ہیں، ایم ڈی واسا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہر کے 126 فلٹریشن پلانٹ ٹھیک جبکہ 94 خراب ہیں۔ ٹی ایم اے ٹھیک کر کے دے تو وہ بھی چلانے کو تیار ہیں۔ ایم ڈی واسا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے، شہر کے تمام بند فلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کے کیس کی سماعت آج ہوگی اور عدالت نے لارڈ میں مبشر جاوید کو بھی آج اسی کیس کے حوالے سے طلب کر رکھا ہے۔ ادھر سی سی پی او کی جانب سے بھی عدالتی احکامات نظر انداز کرنے کا رجحان برقرار ہے۔ عدالتی حکم عدولی پر سی سی پی او کے خلاف ایک اور توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ سی سی پی او بی اے ناصر کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ جسٹس محمد طارق عباسی آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اورنج ٹرین منصوبے کو فنڈز جاری کرنے کے بجائے 13 کروڑ کا کٹ لگا دیا۔ محکمہ خزانہ کے حکام کے مطابق صوبائی محکمہ ترقیاتی بورڈ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے ذریعے سے 13 کروڑ روپے کے فنڈز محکمہ سکول ایجوکیشن کو منتقل کرنے کا مراسلہ ارسال کیا ہے۔ اورنج ٹرین کے اطراف میں سڑکوں کی بحالی کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جس کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ مختص تھا۔ حکومت نے منصوبے کے لیے بنایا گیا پی سی 1 تو منظور نہ کیا، لیکن فنڈز منتقل کر دیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ سکول ایجوکیشن 13 کروڑ روپے کے فنڈز ڈیٹا بیس پروگرام پر خرچ کرے گا۔ اس سلسلے میں صوبائی محکمہ پی این ڈی بورڈ نے فنڈز منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کچھ بات کریں گے نیب کی۔ نیب لاہور میں بھجوائے گئے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ ڈیپٹی رجسٹرار کے دفتر سے غائب ہو گیا ہے۔ سرکل رجسٹرار جلیل احمد قریشی سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اشفاق شاہد کی علالت کے باعث جلیل قریشی کو ڈپٹی رجسٹرار کا ایڈیشنل چارج دیا گیا تھا۔ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ جلیل احمد قریشی نے مبینہ طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ تالے توڑ کر غائب کیا۔ مراسلے میں مزید لکھا گیا کہ ریکارڈ واپس نہ پہنچانے کی صورت میں ایف آئی آر دائر کرائی جائے گی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ رجسٹرار کوآپریٹو کرن خورشید سوسائٹی مافیا کی پشت پناہی کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ذرائع نے مزید دعویٰ کیا کہ ڈپٹی رجسٹرار اشفاق شاہد تمام کرپٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ نیب لاہور میں بھجوانا چاہتے ہیں۔ شہری ہوشیار وال چاکنگ پر فوری ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کی زیر صدارت انسداد تجاوزات اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید کی زیر صدارت شہر میں تجاوزات کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز، زیڈ او آر اور ٹی ایم اوز نے شرکت کی اور اپنے متعلقہ تحصیلوں میں تجاوزات کے خلاف اب تک کیے جانے والے آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید نے ماڈل روڈز پر تجاوزات کی روک تھام کے لیے سختی سے عمل درآمد کروانے کے احکامات جاری کرتے ہوئے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ اے سی ماڈل ٹاؤن برکت مارکیٹ، مین مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹوں میں تجاوزات کے خلاف کیے جانے والے آپریشن پر بریفنگ دی، جبکہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ، فیروزپور روڈ، علی زیب روڈ، مین بلیوارڈ، گلبرگ، جیل روڈ اور علامہ اقبال روڈ پر تجاوزات کے خلاف کیے جانے والے آپریشن سے آگاہ کیا۔ کریم بلاک، مون مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز نے احکامات دیے کہ انسداد تجاوزات کیمپ لگا کر عملہ ہر 10 روز بعد تبدیل کیا جائے۔ دوسری جانب لاہور سمیت مختلف شہروں میں مزید ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا 45واں بورڈ کا اجلاس ہوا اور بورڈ ممبران کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں ہونے والے 45ویں اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے کی، جس میں ڈائریکٹر جنرل پھاٹا ضیاء الدین ستی سمیت دیگر بورڈ ممبران شریک ہوئے۔ پھاٹا کے 43ویں اور 44ویں بورڈ اجلاس کی میٹنگ منٹس کی منظوری لی گئی اور ممبران کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پھاٹا آرڈیننس کو فعال بنانے کے لیے تجاویز بھی دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر نئے شہر بنانے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ لاہور سمیت مختلف شہروں کے ساتھ نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جائیں گی۔
पुलिस में तब्दीली के दावे तो आसान, लेकिन तब्दीली लाना मुश्किल हो गया। शहर की आबादी दुगनी हो गई, लेकिन थानों की नफरी वही पुरानी है। 20 साल गुजर गए, थानों की नफरी जो कि तू 1200 अफराद के लिए सिर्फ एक पुलिस एहलकार। 1998 में होने वाली मर्दमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर शहर की आबादी 51 लाख से जायद थी और उस वक्त भी थानों में पुलिस नफरी 10,000 के लगभग थी। 2002 में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग में तकसीम तो कर दिया गया, ताहम थानों में नफरी वही 10,000 रही। थानों में इस वक्त 7,000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान ऑपरेशन विंग के तैनात हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग में सिर्फ 3,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक लाहौर में आबादी दुगना से ज्यादा हुई और आबादी 1 करोड़ 11 लाख से तजावुज कर गई, ताहम इसके बावजूद थानों में पुलिस नफरी वही 10,000 रही। नए पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी इस पर कोई तवज्जो न दी और थानों में नफरी को बढ़ाने के लिए गुज़श्ता 20 सालों की तरह अब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वज़ीर पंजाब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आईजी ऑफिस ने गैर कानूनी तौर पर लाहौर में भर्ती डॉल्फिन फोर्स का कांस्टेबल्स को डीजी खान भिजवा दिया है। कांस्टेबल का कानून के मुताबिक जिले से बाहर तबादला ही नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ख्वाहिश पर डीजी खान में डॉल्फिन फोर्स बनाने के लिए लाहौर से 70 कांस्टेबल्स और 3 मोटरसाइकिलिस्ट समेत दीगर लॉजिस्टिक को डीजी खान भिजवाया गया है। लाहौर में हाल ही में भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स भी डीजी खान तबादले से बददिली का शिकार हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक लाहौर में डॉल्फिन फोर्स से मोटरसाइकिलिस्ट डीजी खान भिजवाने से पेट्रोलिंग का निजाम भी मुतासर हो गया। डॉल्फिन एहलकारों को शहर की तमाम बीट्स में गश्त करवाया जाना था, जवाब मुमकिन न रहा। सरकारी स्कूलों में 40,000 असामियां खाली हैं। ग्रेड 20 के प्रिंसिपल की 500 जबकि ग्रेड 17 और 18 के हेडमास्टर्स की 1,900 सीटें तैनाती के इंतजार में हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 3,300 जबकि सीनियर स्कूल टीचर की 3,600 असामियां खाली पड़ी हैं। तफसीलात के मुताबिक ग्रेड 19 और 20 के प्रिंसिपल की 500 असामियां खाली हैं। ग्रेड 17 और 18 के हेडमास्टर की 1900, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 3300 जबकि सीनियर स्कूल टीचर्स की 3600 असामियां खाली हैं। ग्रेड 14 और 15 में 30,000 असामियां पुर करने की जरूरत है। एईओज की 11 असामियां खाली हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खाली असामियों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। महकमा तालीम का कहना है कि भर्ती पर पाबंदी खत्म होते ही असामियां पुर कर दी जाएंगी। सर्दी में इजाफा होते ही स्कूलों में बच्चों की हाजिरी में भी 40% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 24 दिसंबर से देने का ऐलान कर दिया है। वालिदैन और बच्चों ने हुकूमत से मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जिस वक्त हम गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सिविल लाइंस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में सर्दी में इजाफा होते ही जो है वो तलबा की हाज़िरी जो है वो 60% पर पहुंच गई है। 40% हाज़िरी जो है वो स्कूलों में कम हुई है क्योंकि सुबह बूंदाबांदी भी हो रही थी। इस वजह से तलबा को स्कूल आने में मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी वाले से हम बात करेंगे तलबा और असातिज़ा से, उनसे पूछेंगे कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और ठंड में इजाफे की वजह से हाज़िरी भी कम रही है। आज ठंड में इजाफे की वजह से हमारी हाज़िरी बहुत कम हुई है। 60% पे हाज़िरी चली गई है, वरना हमारी 90% ज़रूर होती है। आज सुबह बूंदाबांदी भी हो रही थी जिसकी वजह से आधे बच्चे नहीं आ पाए। उसकी मैं भी बहुत मुश्किल से आया हूँ आज, लेकिन आना था क्योंकि टेस्ट था केमिस्ट्री। ये बताओ कि तलबा ये भी कह रहे हैं कि जल्दी छुट्टियाँ हैं, दौरानिया बढ़ाया जाए छुट्टियों की। हाँ जी, होना चाहिए। बहुत हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि छुट्टियाँ ज़्यादा कर दें, ज़्यादा भी कर दें और जल्दी भी दे दें। जो 24 तारीख को छुट्टियाँ होनी है वो आज ही दे दें बेशक। जी, आपने बात सुनी तलबा की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और तलबा का कहना है कि उन्हें स्कूल आने में भी मुश्किल होती है, तो उन्होंने मुतालबा किया कि छुट्टियां जो हैं वो जल्दी दे दी जाएँ। क्या यह बच्चों का सही मुतालबा है कि वो कह रहे हैं कि छुट्टियां जल्दी दे दी जाएँ? ऐसी बात नहीं है, ये शुरू से ही सिलसिला ऐसे ही चलता है छुट्टियों का। अब नो डाउट सर्दियों की वजह से मसाइल तो बढ़ते हैं बच्चों के, तो एक सिलसिला ये तो किया जा सकता है कि गर्मियों की छुट्टियां कम करके सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी जाएं। ये नहीं हो सकता कि वहाँ भी 2.5 महीने की छुट्टियां बच्चों को दे दी जाएं। इनका तालीमी खर्च बहुत ज़्यादा होगा फिर उस वजह से। अब जैसे ही ठंड बढ़ी है और सुबह बारिश हो रही थी, उस वजह से थोड़ी तादाद कम हुई है, लेकिन ये फिर लोग अपनी रूटीन बना लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी, आपने बात सुनी कि रूटीन बन जाती है और उनका यह भी कहना है कि पहले ही तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं और अगर अब छुट्टियां दे दी गई तो इससे बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। लेकिन तलबा ने मुतालबा किया है कि छुट्टियां का दौरानिया जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जुनेद रियाज, तलबा का बस चले तो स्कूल जाए ही ना। सर्द मौसम हो और गर्म चाय ना ली जाए, ये कैसे मुमकिन है? कश्मीरी चाय शदीद ठंड में मौसम का मजा मजीद दोबारा कर देती है। मजीद तफसीलात अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में।
लक्ष्मी चौक पर बिकने वाली कश्मीरी चाय, जो अपने खास रंग, खास खुशबू और खास जायके के बायस जुबान ज़दे आम है। बड़े से पतीले में पकते पकते बिकती इस चाय को पीने के लिए क्या नौजवान, क्या शादीशुदा हजरात अपने अहलो अयाल के साथ खिंचे चले आते हैं और यहाँ आकर गर्म गर्म कश्मीरी चाय की चस्कियाँ लेते हैं। यही नहीं, रिक्शा ड्राइवर बरसती बारिश में रिक्शा रोक कर एक कप चाय जरूर पीते हैं। रिसेंटली 1 साल पहले भी यहाँ पे आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय किया हम लोगों ने। चाय पीने तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। जो टेस्ट इधर का है वो कहीं और से नहीं मिलता है, इसलिए इधर चाय पीने हम आते हैं। दुकानदार ने चाय के साथ पैटीज और नान खताइयाँ भी रख छोड़ी हैं, जिसे मीठी चाय के साथ नमकीन के तौर पर खाया जाता है। दुकानदार के मुताबिक वो तवील अरसे से कश्मीरी चाय का कारोबार चला रहा है। 40 से 50 साल हो गए हमारा ये कारोबार, मुसलसल इसी तरह चल रहा है और रेगुलर चल रहा है। ये सर्दियों में हम चाय लगाते हैं और गर्मियों में हम ठंडा दूध लगाते हैं। चाय के रसिया लोगों के लिए ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। जभी तो लक्ष्मी चौक के कश्मीरी चाय के इस खास हिस्से पर हमेशा शहरियों का रश रहा है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। लाहौर का इलाका शाहदरा शहर का दाखिली रास्ता होने की वजह से हमेशा से तवज्जो का मरकज रहा है। मुगल बादशाहों ने भी यहाँ बागात लगवाए। यहाँ के अहम इमारतों में नवाब आसिफ खान का मकबरा भी मौजूद है। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। शाहदरा में जहांगीर और नूरजहां के मकबरे अगर खूबसूरती की बिना पर देखने से ताल्लुक रखते हैं तो आसिफ खान का मकबरा अपने उजाड़पन की वजह से मुनफरिद लगता है। मौरखीन सैयद अब्दुल लतीफ और कन्हैया लाल ने लिखा कि सिख हाकमान के दौर से इस अजीम मकबरे की अबतरी शुरू हो गई। आसिफ खान का असल नाम मिर्जा अबुल हसन था, जो मलिका नूरजहां का भाई और मलिका मुमताज महल का वालिद था। आसिफ खान ने शहनशाह जहांगीर के अहद में बहुत तरक्की की, यहाँ तक कि वो मुगल दरबार के अहम ओहदेदारों में शामिल हो गए। शहनशाह जहांगीर के बाद तख्त नशीनी की जिद्दोजहद में आसिफ खान ने अपनी बहन मलका नूरजहां की मर्जी के खिलाफ शाहजहां के मनसब के लिए कोशिश की तो बहन भाई में सख्त दरार पड़ गई। शाहदरा कॉम्प्लेक्स में वाक़े मकबरा नवाब आसिफ जा इंतहाई खूबसूरत मकबरा था, मगर इस पर कुछ ऐसी उफ्ताद पड़ी कि ये खराब से खराब तर होता चला गया। अब इसे बहाल करने की ज़रूरत है और महकमा आसार कदीमा इसे बहाल करने का इरादा भी रखता है, मगर उसके लिए इंतहाई ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। लोग मुतकाज़ी हैं कि इसको बहाल किया जाए ताकि ये दिलचस्पी का और दिलकशी का बायस बन सके। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ रजा खरल, लाहौर। अजीज की खातिर जान का नजराना 21 साल सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद 11 दिसंबर 2017 को जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम कर गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद शहीद को हम से बिछड़े 1 साल बीत गया है। वतन की हवाएं इस कम उम्र शहीद को सलाम पेश करती हैं। तफसीलात दुरनायब की रिपोर्ट में। 21 साल सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद का ताल्लुक पाक फौज के 136 लॉन्ग कोर्स से था। पास आउट होते ही उन्हें पाक फौज के 4 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यूनिट में तैनात किया गया और शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिलाने की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद और उनके साथी सिपाही बशारत अली दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का निशाना बन गए। आर्मी चीफ ने उनके घर जाकर उनके वालिदैन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और उनकी अजीम कुर्बानी का एतराफ किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद शहीद अपने घर में 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। वालिद उस्ताद जबकि वालिदा घरेलू खातून हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद ने आर्मी ट्रेनिंग मुकम्मल करने और तैनाती के बाद भी अभी अपनी पहली तनख्वाह भी वसूल न की थी कि शहादत मिल गई। सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मोईद का नाम इस मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले लाखों मुहाफिजों की फहरिस्त में रोशन सितारे की तरह जगमगाएगा। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे की लाहौर से साहिवाल रेलवे ट्रैक की इंस्पेक्शन। सुफियान सरफराज ने रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन रिकॉर्ड ट्रैक का जायजा लिया। सेक्शंस पर ट्रेन सर्विस और रेलवे आमदनी का भी जायजा लिया गया, जबकि मुसाफिरों के लिए सहूलियात में इजाफे के लिए कोशिशें DSP रेलवे की जानिब से कहा गया है। सुफियान सरफराज का मुख्तलिफ स्टेशन पर सरकारी रिकॉर्ड का भी मुआयना किया गया है और तमाम तर सहूलियात का उन्होंने जायजा लिया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे की लाहौर से साहिवाल रेलवे ट्रैक की इंस्पेक्शन हुई और सुफियान सरफराज ने रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन रिकॉर्ड और ट्रैक का जायजा लिया। सेक्शंस पर ट्रेन सर्विस और रेलवे आमदनी का भी जायजा लिया गया। पनामा और दुबई लीक्स के बाद एक और हंगामा सामने आ गया। FBI ने बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले मजीद 579 पाकिस्तानियों की तफसीलात हासिल करके 132 लाहौरियों के केसेस लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स लाहौर को भिजवा दिए।
FBI ने बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले पाकिस्तानियों की मजीद तफसीलात हासिल कर ली हैं। FBI ने मुल्क भर के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स में कायम ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को 579 नए पाकिस्तानी सरमायाकारों के नाम और तफसीलात भिजवा दी हैं। LTU लाहौर के ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन को बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले 132 लाहौरियों के नाम भिजवाया गया है। FBI ज़राए के मुताबिक लार्ज टैक्स पेयर यूनिट लाहौर ने मुख्तलिफ ममालिक में जायदादें रखने वाले 132 अफराद को नोटिस भेजने का अमल शुरू कर दिया है। बैरून मुल्क जायदादें रखने वाले सरमायाकारों को सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताने के लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। बादामी बाग में 3 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुबैना ज्यादती के खिलाफ अहले इलाका का थाना बादामी बाग के बाहर एहतजाज। नारेबाजी, बच्ची के अहले खाना ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बादामी बाग के इलाके में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले शख्स को इलाका मकीनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम ने सुबह 10 बजे बच्ची को घर के सामने से अगवा किया और एक बंद फैक्ट्री में ले जाकर ज्यादती की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने देखकर उसे पकड़कर थाना बादामी बाग पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने अपना नाम शाहजहां बताया है। थाना बादामी बाग ने बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ अगवा और ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले खाना ने मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना अजहर के साथ सैयद फखर इमाम, सिटी 42। डेप्यूटी कमिश्नर सालिहा सईद के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड शाहिद महबूब की मांगा मंडी और मौजा लुधे की कब्रिस्तान में तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। तफसीलात उस्मान अलीम की इस रिपोर्ट में। शालीमार शाहिद महबूब ने जिला इंतजामिया की टीम के हमरा मांगा मंडी में ऑपरेशन करते हुए 80 से ज्यादा सीढ़ियों, थड़ों और दीवारों को मिसमार कर दिया। 20 दुकानदारों के खिलाफ तजावुजात कायम करने पर मुकदमात का इंदराज किया गया, जबकि 2 दुकानों को गैर कानूनी होने पर मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया। जानिब तहसील रायविंड के मौजा लद्दे की में AC रायविंड ने कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ मालियत की 68 कनाल सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। ऑपरेशन में मशीनरी के जरिए पुख्ता स्ट्रक्चर्स को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, पुलिस, MCL और रेवेन्यू के अफसरान शरीक हुए। लाहौर हाईकोर्ट से खबर आप तक पहुंचाएंगे। हिफाजती इंतजामात किए बगैर मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी के हुक्म में 13 दिसंबर तक तौसी करते हुए पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम को तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी समेत दीगर को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौका इख्तियार किया कि मोटरसाइकिल के टायर में कपड़ा और बच्चों के पांव आने की वजह से हादसा होते हैं, जबकि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों की जानिब से मोटरसाइकिल पर हिफाजती इंतजाम नहीं किए जा रहे। हिफाजती इंतजाम न होने की वजह से हादसा में इजाफा हो रहा है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत हिफाजती इंतजाम किए बगैर मोटरसाइकिल की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म दे। अदालत ने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिकान को तलब करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत की नाअहली या अंदरूनी खिलफशार, 100 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर गया, पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर ही न हो सका। तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रर के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर लॉबिंग की जा रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रर में तखीर की वजह यह है कि हर वजीर अपने ग्रुप के अराकीन को एडजस्ट कराना चाहता है। जराये का कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर असर रसूख रखने वाले वज़रा का अपने ग्रुप के पार्लिमानी सेक्रेटरीज को बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ताहम वजीर आला पंजाब ने तमाम वज़रा से नाम लेकर फहरिस्त वजीर आज़म को भिजवा दी है। वजीर आज़म आइंदा 2 से 3 रोज में पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नामों को फाइनल कर देंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रर न होने के बायस काम का बोझ वज़रा के सर पर है। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए आयशा चौधरी, सुमेरा बुखारी, सादिया सुहेल राना, आसिया इसहाक, सिमाबिया ताहिर और मुसर्रत जमेद चीमा के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। पंजाब में एक और अथॉरिटी के कयाम का मुजव्विज़ा बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमती सरपरस्ती वाले इदारे अथॉरिटी में जिम होंगे। फनी तालीम के फरोग के हवाले से भी सूबे भर में नई अथॉरिटी को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पंजाब में सरकारी कंपनियों के बाद अब अथॉरिटियों में भी इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत फनी तालीम के फरोग के लिए पंजाब स्किल डेवलपमेंट के नाम से अथॉरिटी बनाएगी, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल PSDF जम होंगे। अथॉरिटी की मंजूरी के बाद अब मुजव्विज़ा बिल भी स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर कर लिया है, जिस पर अब बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी गई है। अथॉरिटी अपने फैसलों के हवाले से खुद मुख्तार होगी। अथॉरिटी पंजाब में फनी तालीम के फरोग के लिए नई हिकमत अमली अपनाएगी, जबकि अथॉरिटी में टेक्निकल लोगों को भी भर्ती किया जाएगा। पंजाब में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार देने के लिए तरबियत दी जा रही है, जिसका अब मुकम्मल कंट्रोल अथॉरिटी को दिया जाएगा। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। बुजुर्ग पेंशनर्स की शिकायत के तदारुक के लिए लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने हफ्ते में 1 रोज खुली कचहरी लगाने का फैसला कर लिया।
लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद बुध के रोज रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि बुजुर्ग पेंशनर्स के मसाइल मौके पर ही हल किए जाएंगे। वो पेंशन ब्रांच की कारकर्दगी का भी खुद जायजा लेंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को शिकायत के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन के हसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के वफात पा जाने पर लवाहिकीन को पेंशन के हसूल में मुश्किलात का सामना था। सानेहा मॉडल टाउन की जिस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नई JIT बनाई जाएगी। आपको बताएं इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सानेहा मॉडल टाउन की भी बात की जा रही है। सानेहा मॉडल टाउन की नई JIT की तश्कील के नोटिफिकेशन के सिलसिले में जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जवाद हामिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने नई JIT की तश्कील के लिए रजामंदी जाहिर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ पेश किया कि अदालत हुकूमत को नई JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म इस्तदा की कि हुकूमत नई JIT फौरी बनाकर नोटिफिकेशन अदालत के रूबरू पेश करे, जिस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 17 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब के कैदियों की आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर, एडिशनल होम सेक्रेटरी मियां मोहसिन रशीद, स्पेशल सेक्रेटरी तारिक महमूद जावेद और IG जेल खाना आजाद मिर्जा शाहिद बेग अदालत पेश हुए। अदालत ने दोनों कैदी आज़ाद कश्मीर से वापस कोट लखपत जेल लाने पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कनीज बेगम की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम सज्जाद नवाज और हुसनैन नवाज की गैर कानूनी तौर पर मीरपुर जेल आज़ाद कश्मीर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान कैदियों की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं है। पाकिस्तान और जेल कवानीन के मुताबिक कैदी एक से दूसरे सूबे की जेलों में मुंतकिल हो सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक मुल्क है, इसका सदर और वजीर आज़म अपना है। किसी कानूनी मुआहिदे के बगैर आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैदियों की मुंतकिली गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पाकिस्तान से आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैदियों की मुंतकली के इकदाम को कलअदम करार दे और आज़ाद जम्मू कश्मीर जेलों में भिजवाए गए कैदी वापस पाकिस्तान लाने का हुक्म दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि दोनों कैदियों को आज़ाद जम्मू कश्मीर जेल से वापस लाकर कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। शहर के तमाम बंद फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने के केस की समाअत लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद अदालत में पेश। जस्टिस अली अकबर कुरैशी केस की समाअत करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि शहर के तमाम बंद फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने के हवाले से केस की समाअत है और लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद अदालत में पेश, जबकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी केस की समाअत करेंगे। अहम फैसला किया जाएगा। शहर के तमाम बंद फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने के हवाले से केस की समाअत होगी और लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद आज इसी हवाले से अदालत में पेश हो गए, जबकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी इसी केस की समाअत करेंगे। शहर के तमाम बंद फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल करने की केस की समाअत होगी। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद अदालत में पेश हो गए हैं। लेस्को से खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेस्को में 2 चीफ इंजीनियर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए, जबकि चीफ इंजीनियर्स प्लानिंग मोहम्मद नासिर रिटायर हो गए। लेस्को HR डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी अमीन को तब्दील करके चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डिजाइन तैनात कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह लतीफ मुगल को चीफ इंजीनियर ऑपरेशन लगा दिया गया है। लतीफ मुगल की तैनाती की वजह से चीफ इंजीनियर टेक्निकल डिजाइन की आसामी खाली हो गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग जारी है। 50 से ज्यादा स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स के मुआयने के दौरान 3 को सील जबकि 12 को भारी जुर्माने किए गए। PFA तर्जुमान के मुताबिक मिठाई की तैयारी में नाकिस फ्लेवर्स, खुले रंग, गैर मयारी घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। सफाई के नाकिस इंतजामात और वर्कर्स के मेडिकल भी अदम मौजूद पाए गए। प्रोडक्शन एरिया में वॉशरूम, खुले कूड़ादान और हशरात की भरमार पर कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकिस इंतजामात पर 12 यूनिट्स को भारी जुर्माने और मजीद बेहतरी के लिए 36 स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट्स को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए। लाहौर रीजन में 31, रावलपिंडी में 17 और मुल्तान रीजन में 11 यूनिट्स को चेक किया गया। और अभी आपको बताएं कि 55वें कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। जिम्नेजियम हॉल में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 55वीं चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कौमी खातून खिलाड़ी के साथ टेबल टेनिस खेलकर इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। टेबल टेनिस के हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि वो भी 10 साल तक टेबल टेनिस की खिलाड़ी रह चुकी हैं और इस खेल को स्कूल की सतह पर फरोग देने के लिए सूबाई वज़ीर खेल से बात हो चुकी है। हम स्पोर्ट्स को बाकायदा
बड़े पैमाने में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे, ख़ास तौर पे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस एक ऐसी गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रिफ्लेक्सेस होती हैं। वजह यह है कि सबसे कम टाइम होता है बिटवीन द बॉल एंड द बैट। आपके पास सबसे मिनिमम टाइम होता है कि आप बॉल और बैट के दरमियान, तो इसलिए जो लोग टेबल टेनिस खेलते हैं उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। टेबल टेनिस के टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ सरपरस्ती की जरूरत है। इस तरह के इवेंट से हौसला अफजाई होती है और ये होते रहने चाहिए। जूनियर प्लेयर्स को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स अपनी टीम्स में परफॉर्मेंसेस को करें और अपने डिपार्टमेंट्स को की तरफ से खेलें। इवेंट्स कम खेलने को मिलते हैं, उस तरह से हम लोग पाकिस्तान रैंकिंग में टॉप नहीं कर पाते, इसलिए मेरा यही कहना है कि ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएं ताकि जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और आगे आ सकें। टेबल टेनिस को प्रमोट इसी तरह से किया जा सकता है कि जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा कवरेज होगी, लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग स्पोर्ट्स में डालेंगे अपने चिल्ड्रन को और उसके अलावा फिर लोगों की पार्टिसिपेशन होगी और पार्टिसिपेशन से चैम्पियनशिप बनती है। इवेंट के मेजबान पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन के सदर इरफानुल्लाह का कहना था कि इवेंट का मकसद बेहतरीन खिलाड़ियों को सामने लाना है। 20 टीमों पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में टीम इवेंट्स के फाइनल 12 दिसंबर जबकि इनफरादी इवेंट्स के फाइनल 15 दिसंबर को खेले जाएंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शोबा तिब इंतहाई मुकद्दस पेशा है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं बसाम सुल्तान की ये रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में वीसी यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम, वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर असद असलम समेत दीगर मेडिकल कॉलेज के सरबराहान ने शिरकत की। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म का कौमी और सूबाई सतह पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराना खुश आइंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए अमली नमूना है। हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्होंने फरमाया कि माँ बाप की रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर टीचर्स की रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इदारों में आके किस तरीके से उन्होंने मेहनत करना है, काम करना है, और सबसे बड़ी बात जो मैसेज आज वो दे के गए हैं कि आपने अच्छा डॉक्टर बनना है, आपने अच्छा इंसान बनना है। इस मौके पर मौलाना तारिक जमील ने नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तफसीली लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल डॉक्टरी पेशा बिजनेस बन चुका है। 90% डॉक्टर कंपनियों के हाथों यरगमाल हैं। उन्होंने तमाम डॉक्टरों से इंसानियत की सच्चे दिल से खिदमत करने की दरख्वास्त की। जब तक आपके सामने नहीं झुकते मुझे कोई कबूल नहीं है। उसी का तर्जमा हमारे शायर ने किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। तालीमी इदारों में अकायद जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस यकीनन ईमान को पुख्ता करने और शुरका को मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने में मुआविन साबित होंगी। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। उधर आस्ताना आलिया चिरागिया खुतबुल इरशाद पील कॉलोनी वाल्टन लाहौर कैंट में भी सैयद मोहम्मद इरशाद हुसैन शाह के 21वें सालाना उर्स की तकरीब का आगाज हो गया। तफसीलात शाहिद सिपरा की रिपोर्ट में। पीर सैयद मोहम्मद इरशाद हुसैन शाह अल मारूफ हाफिज जी सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात के आगाज से कबल मज़ार शरीफ पर गुस्ल और रस्म चादर पोशी की तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब सैयद सईदुल हसन शाह, सेक्रेटरी औकाफ जुल्फकार अहमद गुम्मन, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब के दौरान सूबाई वजीर औकाफ ने मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के हवाले से खुसूसी दुआ भी करवाई। हर मुसलमान की तांग है और एक नई दी हर मुसलमान की तांग है। अल्लाह ये विच होर अदा फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह करम अता फरमा। उस तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। PP 168 के ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर सरगर्मियाँ तरतीब दे दी गई। इस हल्के और इंतखाबी मुहिम के हवाले से तफसीलात जानते हैं ताहिर जमील खान से। जी ताहिर जमील खान, बताइएगा इंतखाबात की तैयारियाँ कैसी हैं? बिल्कुल, PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है और परसों बरोज़ जुमेरात 13 दिसंबर इस हल्के पर इंतखाबी मैदान सजने जा रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक असद अली खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना खालिद महमूद कादरी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साजिद महमूद समेत कुल 12 उम्मीदवार इस हलके से मैदान में हैं और आज आखिरी रोज़ जो इंतखाबी मुहिम का है इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के मूड में है ये तमाम उम्मीदवार। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से आज इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज से चलाने की तैयारियां हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस, रैलियों का अहतमाम इन उम्मीदवारान की जानिब से किया गया है। आज 12 बजे तक ये इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी और कल बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल होगा और जुमेरात को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल इस हल्के पर होगा। इस हल्के की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने आम इंतखाबात में ये नशिस्त जीती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फयाज भट्टी को उन्होंने भारी मार्जिन से शिकस्त देने के बाद ये नशिस्त हासिल की थी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जब NA 131 की नशिस्त छोड़ी तो ख्वाजा साद रफीक ने ज़िमनी इलेक्शन वहाँ से जीता और कौमी असम्बली की वो नशिस्त जीतने के बाद सूबाई असम्बली की ये नशिस्त ख्वाजा साद रफीक ने छोड़ दी थी और अब परसों इस नशिस्त पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा ये नशिस्त जीतने में कामयाब होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की जीती हुई ये नशिस्त छीन लेगी। इसके लिए हमें परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है ताहिर जमील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको इंसाफ अदालत में साफ पानी केस की समाअत और CEO वसीम अजमल, इंजीनियर कमरुस्सलाम समेत 22 मुल्जिमान अदालत पेश। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस में डीजल की खुर्द-बुर्द का मामला है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी आज एहतसाब अदालत नंबर 5 में साफ पानी केस की जो है यहाँ पर समाअत है और इस केस में 22 के करीब जो मुल्ज़मान हैं जिनमें चीफ एग्जीक्यूटिव साफ पानी वसीम अजमल के अलावा इंजीनियर कमर इस्लाम समेत जो 22 मुल्ज़मान हैं वो उनकी हाज़िरी जो है वो यहाँ पर मुकम्मल जो है वो की जा रही है और अदालत में नैब की तरफ से जो है वो बाकायदा रेफरेंस जो है वो यहाँ पर पेश कर दिया गया है जिसमें इनको अदालत ने जेल से जो है वो तलब किया था। आज मुल्ज़मान पेश हुए हैं जिन पर उनकी मुकम्मल हाज़िरी करने के बाद इनको 14 रोज़ के लिए जो है वो दोबारा जेल भिजवा दिया जाएगा और अदालत में आइंदा तारीख पर जो है इनको रेफरेंस की जो नकल है वो फराहम की जाएगी। जो मुल्ज़मान आज अदालत में पेश हुए उनमें वसीम अजमल हैं, कमर इस्लाम के अलावा ज़हूर अहमद डोगर हैं, मेजर रिटायर्ड अदनान, आफ्ताब अहमद, मसूल हसन, काज़मी मोइनुद्दीन, मोहम्मद यूनुस समेत के 22 मुल्ज़मान हैं। इसके अलावा आज एहतसाब अदालत में नंदीपुर प्रोजेक्ट में जिन अफराद ने डीजल खुर्द-बुर्द किया था उसके केस की भी यहाँ पर समाअत है और आज उनको अदालत में जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद जो है वो पेश किया गया। जिनको आज अदालत में जेल से लाकर नंदीपुर केस में पेश किया गया उनमें दिलबर डोगर हैं, गुलाम कैसर अब्बास हैं, यूनुस है, राना मेहताब और गुलाम शबीर। इनको अदालत में पेश करने के बाद अदालत से इस्तदा की गई है कि इनके जुडिशल रिमांड में जो है वो मज़ीद 14। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। सेशन अदालत में पुलिस के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला ने सेशन अदालत के दरवाजे बंद कर दिए। सालीन और अदालती अमले को अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है। थाना शाहदरा पुलिस की जानिब से शिकायत पर वकला एहतजाज कर रही हैं। पुलिस ने वकील के घर पर फायरिंग करने वाले एबी शाह को छोड़ दिया है। वकला की जानिब से ये कहा गया है हमारी एडवोकेट साहब के घर एबी शाह वगैरह ने फायरिंग की थी जिसका मुकदमा जो है थाना शाहदरा में दर्ज था। उन्होंने उसमें अपनी जमानतें करवाई हुई थी और इधर आके उन्होंने अदालत की प्रिंसेस में आके वकला पे जो था वो तशद्दुद किया था। एक बंदा जो था इधर से मौका से पुलिस जो थी वो गिरफ्तार करके ले गई थी लेकिन बजाय इसकी कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी डालती और उसको सामने तफ्तीश करती, पुलिस ने वो बंदा भी जो है वो ले दे करके छोड़ दिया। वो कहना है कि वकला पर एबी शाह ने तशद्दुद भी किया था और उसकी जमानत हो गई। अदालत की जानिब से भी वकला का ख्याल नहीं किया गया। वकला ने सेशन अदालत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एहतजाज किया जा रहा है। सारीन अदालती अमले को अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है। सेशन अदालत में पुलिस के खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे हैं। वकला ने सेशन अदालत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सालीन और अदालती अमले को अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है। थाना शाहदरा पुलिस की जानिब से शिकायत पर वकला एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। सारिफ अदालत से खबर आप तक पहुंचाएंगे। 50 इंच की LED खराब देने, वारंटी के बावजूद तब्दील न करने का ये मामला है। मेट्रो कैश एंड कैरी ठोकर न्यास पे का मैनेजर 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। जी आपको बताएंगे 50 इंच की LED खराब देने, वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने के इस मामले पर मेट्रो कैश एंड कैरी ठोकर न्यास बेग का मैनेजर 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है।
50 इंच की LED खराब देने, वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने के इस मामले पर मेट्रो कैश एंड कैरी ठोकर न्याज बेग का मैनेजर 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, सारिफ अदालत से खबर है जहां पर नोटिस ले लिया गया है इस मामले का और 50 इंच की LED खराब देने, वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने का मामला सामने आ गया। क्वीन मैरी कॉलेज में 110वां सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्वीन मैरी कॉलेज के 110वें सालाना स्पोर्ट्स डे के मौके पर रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बेगम गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना मरियम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। तालिबात ने कराटे और जिम्नास्टिक्स में दीगर खेलों का शानदार मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद समेटी।